चलो समय हो गया। जय श्री कृष्ण। थोड़ी देर शांति से बैठे। वर्ष का अंतिम मास time to take stock, to take inventory, to think about how the year went, learn lessons from it, keep what was good, toss what was not, and learning from mistakes, committing not to making those mistakes again, and improving from here on. देखते देखते ये वर्ष भी समाप्त होगा। दिन पर दिन बीत गए। और आने वाले वर्ष के नूतन वर्ष के स्वागत के लिए तैयार हो जाए। कंडीशनिंग द माइंड, स्टार्टिंग टू थिंक अबाउट द नेक्स्ट न्यू स्टेप्स। चरे वेति, द वेद वुड टेल अस कीप मूविंग, कीप प्रोग्रेसिंग। The end will be in sight. Uttishta Jagrata Pratha Varanya Bodhata. The Upanishad would tell us, arise and awake. Utho Jago. बोध की ओर, बोध को प्राप्त करो, बुद्ध बनो। प्रकाश की ओर, लाइट की ओर, एनलाइटेंड। तमसो मा ज्योतिर्गमय। जड़त्व की ओर से, अंधकार की ओर से, जड़ से चेतन, अंधकार से प्रकाश। Non-committal से committed, confusion से clarity की ओर, anxiety से sanctity की ओर, fearfulness से fearless की ओर, doubts संशय से फेथ की, विश्वास की ओर। One more step, steady and steadfast. इतने से इतना हुआ तो उतने से और आगे कितना हो सकता है। धैर्य और संयम पूर्वक, courage and encouragement. When I look back, I see the difference that this journey has made in my life, which encourages me to keep moving forward. With the littlest effort, swalpamapyasya dharmasya trayate mahato bhayat. हमने सुना दूसरे अध्याय में भगवान ने स्वयं कहा, थोड़ा भी प्रयास करे तो रक्षा होगी। And we are the witness, we are the proof of it. Even a little commitment to Swadharma, to my original goodness, effort towards truth, effort to be loving,
truth, goodness, and love. The more steps I have taken, the more I have received. I thought I would have to give. What a delight that I am the one receiving. I am inspired by it. I am motivated to take more steps towards it. I can feel the crack of dawn. I can see the ray of sunshine. तो सारी निराशा हटाकर, जड़ता को त्याग कर, shrugging off complacency, उत्साहपूर्वक, धृति उत्साह समन्वितः, सात्विकता के लिए भगवान 18वें अध्याय में बताएंगे, जो धृति और उत्साह समन्वय पूर्वक होता है, कर्ता सात्विक उच्चते। जो धैर्य पूर्वक, निग्रह पूर्वक, रेजोल्यूट, डिटर्मिन्ड, पक्का, दृढ़, अर्थात धृति, निश्चय और उत्साह, नॉट डिजेक्टेड, छोटे पराभवों से, छोटी मोटी बातों में निराश न हो, उत्साह बना रहे, उद, साहस, brave enough to stay high-minded, धृति उत्साह समन्वित, कर्ता सात्विक उच्चते। हम ऐसे सात्विक कर्ता बनेंगे, भगवान के बताए मार्ग पर चलते हुए, भगवान के वचनों का आदर करते हुए, हमारे अपने विवेक का जो अब तक प्राप्त हुआ उस ज्ञान का आदर करते हुए, परस्परम भावयन्तो, एक दूसरे को भावपूर्वक ढाढ़स बंधाते हुए, हाथ थामते हुए, मदद करते हुए, I have achieved this much, therefore I can achieve the rest too. I'm feeling cleaner inside. I'm sensing more purity inside. I'm feeling more open-minded. I have become more accepting. I can be more forgiving. Therefore, I can do more of it. I can live and let live. I'm getting unstuck. I no longer get stuck, wrapped up. I can let loose, I can laugh, I can have joy, I can have fun. I can chill. I don't stress as much anymore. I don't sweat. I don't curse. I'm less angry these days. I am seeing the joy of unattachment. I am willing to let go. ज्ञेयस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। कुछ महीने पहले 5वें अध्याय में दूसरे श्लोक में हमने सुना ज्ञान कर्म संन्यास योग। नित्य संन्यास की नूतन व्याख्या, भगवान के विलक्षण शब्द, अलौकिक विचार। I am feeling I am walking towards Nitya Sannyas, forever free,
complete and total freedom, no longer arrested by the external, for I have freed my internal, getting my inner game right, fixing my inner game, hitting the bullseye inside as a natural outcome, getting the outer game right too. Just as I walk and my shadow follows wherever I go. कभी आज तक अपनी छाया को, परछाई को नहीं कहना पड़ा मेरे पीछे आ। अब मैं बाईं ओर मुड़ने जा रहा हूँ. Make sure, be alert. You have to turn left. Watch, I'm going to be turning right. Be ready. I never once had to tell my shadow. No instructions. Like a slave, like an obedient follower. Wherever I go, it follows me. Effortlessly, unbeknownst to me, I am not even aware of it. But I have it right behind me. For I am now facing the sun. The shadow is behind me. I am no longer behind the sun chasing my shadow and never being able to catch it. ठीक वैसे ही, when I get my inner game fixed, my outer game follows me. जब मैं भीतर स्वस्थ हूँ, अंदर से स्वस्थ चित्त, अपने स्वधर्म में स्थित हूँ, तो सारे बाह्य धर्म, पिता का धर्म, पति का धर्म, भ्राता का धर्म, मित्र का धर्म, सारे बाह्य धर्म अपने आप ठिकाने लग गए, जो एक अंतर्धर्म ठीक कर दिया भगवान की कृपा से। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्म भयावह। परधर्म की सारी इनसिक्योरिटी निकल गई। नो एंजाइटी, नो लॉन्गर हैंकरिंग आफ्टर दैट which is not mine. For I am now self-satisfied in everything that is mine. जो है, जितना है, जैसा है, वह पर्याप्त है। इसका अनुभव शांति प्रदायक। प्रभु कैसी कृपा। Thank you, my Lord, my beautiful Lord, my loving Lord, my lovable Lord, my Lord of love, my love. Thank you. Where would I be without you? आपकी कृपा न होती तो कैसे बिखर जाते। धन्यो हम प्रभु, कृतार्थो हम, ज्ञात ज्ञातव्यो हम। धन्यवाद। जो जानना था जान लिया। कृतार्थो हम, जो करना था कर लिया। प्राप्तव्यो हम, जो पाना था पा लिया। अब काम क्या बाकी रहा। Forever now until my last breath I will sing your glories, my Lord. I will find a way. I have found a way to give you back small portion of the love you gave me, for I have now known the secret that I am about to hear in today's session. Dhyan Yog, छठा अध्याय, 30वां श्लोक।
the core of the core, the eye of the eye, the center of the center. Yo mam pashyati sarvatra, sarvam cha mayi pashyati, tasyaham na pranashyami, sachame na pranashyati. अर्जुन, जो सब को मुझ में और मुझको सब में देख पाता है, उसके लिए न मैं अदृश्य हूँ न मेरे लिए वह अदृश्य है. अर्थात I am always achieved, available to him, and he to me, the one who can see me in all and all in me. Yo mam pashyati sarvatra, sarvam cha mayi pashyati, tasyaham na pranashyami, sachame na pranashyati. मेरे भगवान, मेरे ठाकुर, मेरे कृष्णा, अब तो ये राज में जान लिया कि सबों में तू ही है. तो जो जो मेरे संपर्क में आए सबको मैं प्रेम दूंगा, ताकि उनके द्वारा तू ही वह प्रेम ग्रहण करेगा. I have found a way to love you, my Lord. This is the life. This is the art and the science of life. This is how I will live for the rest of my life. So help me, God. जय श्री कृष्ण. आप ऊपर बैठे, कुर्सी ले लें, चेयर नहीं. जय श्री कृष्ण एवरीवन. करने के लिए उतरे थे, तो भी करने के लिए उतरे थे. नहीं, वो क्या हो गया, फालतू में तेल बनाया तो पतीले में बच गया था, तो पूरा मेरे सर पे लगा दिया. मैं सोचा संन्यास की शुरुआत हो रही ऊपर से. पहले खोपड़ी पे रख दिया केरुआ रंग. पे आना पड़ेगा. दीवार पे तेल लग गया तो मुझे घुसने नहीं देंगे. अच्छा, ओके. कैसे हो सब लोग? Ready for another brand new year? Okay, right, great. So we're in the 6th chapter, Dhyan Yog, Atma Sanyam Yog. Very powerful. You've heard this before. We're approaching the peak of it. However you want, the eye of the hurricane, or the peak of the mountain, or the depth of the ocean, or the core of the heart, core of the core. Isn't it? Bilkul. Just the most beautiful part, the most powerful, the most lovely part. मैंने एक बार कहा था आप लोगों से कि as you study the Gita, you should try to figure out, synthesize it and figure out what message resonates with you the most, है ना? इसमें से ऐसा कौन सा संदेश है, what shlok, for example, that you would call yourself your most favorite, the one that you just carry with you totally, that पी गए, जिसको खा गए, जो बन गए तुम, ऐसा पी गए कि you have become that, है ना? और रंग चढ़ गया, फूड कलर डालते थे सब वैसे हो जाता ना, जैसे ऐसे. So I would encourage you to intensify your reading of the Gita, to throw yourself in it completely, to dive deep in it. Don't read it for it, drink it, sip it, become it. बिल्कुल रीडिंग तक न रह जाए. ये भगवान की वाणी खाली पढ़ के नहीं होगी, इसको तो अपनाना होगा. अपने आप को छोड़ दे, इसको ले ले. You should not be you, you should not remain you, you should become this. And it's hard to become 702 shlok. So then pick one that really, really resonates with it. So I'll remind that because I found my place through the Gita, in the Gita, and
even say that in this chapter, in the 6th chapter. But I don't want to influence you, इसलिए I will not mention which slok or what, because it shouldn't. Yours has to be yours. That's the point, है ना? All along, पहले session से 6 साल अभी almost, right? I think 5-6 years, I've been saying that this has to be personal. इसका इतना उपयोग नहीं है कि ये मेरी रह जाए, मंदिर वाला भगवान रह जाए, ठाकुर का रह जाए, पंडित का रह जाए, किसी गुरु का रह जाए, संत महात्माओं का रह जाए, शास्त्रों का भगवान रह जाए, तो इतना कुछ इसका फ़ायदा नहीं है। इसका सच्चा फ़ायदा जब तुम्हारा हो, अपना हो, तो यू हैव टू। इसलिए सगुण साकार आराधना का भी महत्व है कि जो निर्गुण हो, निराकार हो, उसको अपना कैसे बनाए। हाउ कैन यू इंटेंसिफाई द रिलेशनशिप। निर्गुण निराकार तो है ही भगवान, कैसे नाकार सकेंगे, है ना? लेकिन सगुण साकार की महत्ता ये कि उसको हम अपना सकते हैं। यू कैन एक्चुअली इमेजिन, यू कैन एक्चुअली विजुअलाइज, यू कैन एक्चुअली एज इफ टच द फीट ऑफ और एम्ब्रेस, या उसके सिर पे चढ़ जाए, या उसके साथ मस्करी करे, या खेले, या उसको अपना बच्चा बना के करे, जो है ना, उसके साथ पीछे उसको बांध दे, जो कर सकते हैं। यू हैव टू गेट टू दैट स्टेज। उसके बाद जब होगा तो होगा, जैसे होगा, निर्गुण निराकार में रुचि होगी तो होगी, उसमें कोई वांधा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान अगर भगवान है, बहुत 10 बार कही ये बात, भगवान अगर सच्चे भगवान है तो वो निर्गुण निराकार क्यों नहीं हो सकते? अगर भगवान सच्चे भगवान है तो वो सगुण और साकार क्यों नहीं हो सकते? तो ये किसने उटपटांग बातें कर दी, ये आधा पका नॉलेज कैसे अपना दिया कि नहीं निर्गुण निराकार ही है, नहीं सगुण साकार ही है, ऐसे कह, फिर वो तो आधा भगवान हुआ ना। भगवान कैसे हुआ? हम तो पूरे भगवान की आराधना करते हैं। पूरा प्रभु आराधिए, पूरा जाका नाम, नानक जी का श्लोक है कि पूर्ण पुरख, पूर्ण पुरुष की आराधना करे। भगवान खुद कहते हैं 15वें अध्याय में, पुरुषोत्तम। क्षर अक्षर तो है, जीवात्मा, आत्मा जो है अक्षर है, शरीर जिसे हम अपन खुद मानते हैं वो क्षर है, मिटने वाला है, कम होने वाला है, डिग्रेडिंग है, और जो हम आत्मा है वो नहीं होने। लेकिन ये तीनों से उत्तमस्तु पुरुषस्त्वन्य 15वें अध्याय में कहते हैं, ये दोनों से अलग तीसरा और है जो क्षर और अक्षर के आगे वाला है। और भगवान कहते हैं अपनी ओर निर्देश कि वो मैं हूँ, इसलिए शास्त्रों में पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता है। सारे पुरुषों में पुर इज द फॉर्म, गांव, है ना, नागपुर, कानपुर, जैसे जो जिसका मर्यादा हो, जिसकी लिमिट हो, सीमा हो, उसे पुर कहते हैं। तो शरीर को पुर कहते हैं। और उसमें जो ईश है, जो जिसको चलाता है वो पुरुष, उसमें भी जो उत्तम है पुरुषोत्तम, इसलिए यो लोकम माम अभिजानाति पुरुषोत्तम अव्ययम, कि मैं सारे लोकों में मतलब 14 लोकों में, सत्यलोक में भी गए, ब्रह्मा जी के लोक में भी गए, तो कि पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता हूँ। सो I'll set the bar high, I'll set the standard high, because the new year is coming up, है ना? So जैसे जैसे नीचे आता तो we have to do it ourselves also. So like crank it up a couple of notches again, like this is my goal for 2019, this is what I want to do. So I would share a couple of thoughts with you. May you a year from now have a full and complete love of God. And what will aid a lot, what will help a lot in it is if you can figure out a way, a form of God that you can relate to. Any form that you like. It is not necessary the form that I like be your form. ऐसा तो जरूरी हो ही नहीं सकता, है ना? सबके पति अलग है, सबकी पत्नी अलग है, सबके बच्चे अलग है, तो सबका भगवान क्यों नहीं अलग हो सकता? जरूर हो सकता है, होता ही है इनफैक्ट, उसको अगर ढूंढे अंदर में तो, है ना? उसमें प्रॉब्लम कोई नहीं, संकट कोई नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, कन्फ्यूजन की भी कोई बात नहीं है। एको हम बहुश्याम, भगवान कहते हैं वेदों में, मैं हूँ एक, था एक, और मैंने अपने मन में उसके मन में संकल्प आया कि मे बी I'll try becoming many. Gee, I wonder what happens if I become many. And there was, अपने नेत्रों की संकल्प शक्ति से, संप्रेक्षण शक्ति का उल्लेख आता है, projecting wherever he looked. Imagine that, जैसे डिज्नी मूवी में बताते हैं, दिखाते हैं, wherever he looked around, everything started to come back to life and leavened. Imagine the power of his sight. जिधर भी मुड़ के देखे, संप्रेक्षण शक्ति के द्वारा जड़ चेतन बन जाए, क्योंकि उसकी दृष्टि में चेतना है, चैतन्य है ना? तो जहाँ जा देखे वो, लेकिन वो सारे उसके साथ जुड़े हुए हैं, बिकॉज ही इज ऑल, तो एक में से बहुत बन गया। तो
इसमें कोई अद्वैत के साथ इसका कोई विरोध आभास नहीं है. We don't want to get too entangled into एक है या many है. पहले तो अपना काम बनाना चाहिए. Whatever resonates with your heart, first focus on that. अपने आप धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी, गारंटी. और तो क्लैरिटी का लक्षण ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ओपन माइंडेड बन पाएंगे. क्लैरिटी ये नहीं होगी कि और नैरो और स्टक और आग्रह और दुराग्रह और जिद की अटक होगी, हेकड़ी होगी, ऐसा नहीं है. ऐसा ही क्लैरिटी का लक्षण ये होगा कि और स्पेस होगी सबके लिए, इंक्लूसिव होते जाएगा, एक्सक्लूसिव नहीं. God is not exclusive. God cannot be exclusive. God is inclusive. Spirituality does not make us exclusive. है ना? Exclusive तो फिर अभिमान, गर्व में आज के तो और श्रिंक कर देगी, है ना? कल्टिश हो जाएंगे अपने. Real spirituality, true spirituality will make us more inclusive, more open. सबके लिए जगह है. और ऐसी बातें भगवान खुद कहते हैं. By the way, God also, this is just not my concoction or not my opinion. It is that also. I also feel that way. But it is very specifically mentioned, referenced by Krishna to Uddhav. In an answer to a question, Uddhav पूछते भगवान से कि तुम ऐसे ऐसे बात बता रहे, लेकिन मैंने तो ये भी सुना है, वो भी सुना है, वो भी सुना है. बहुत महाज्ञानी थे उद्धव. बृहस्पति से, देवों के गुरु बृहस्पति से उन्होंने शिक्षा पाई थी. 5 साल की उम्र में सारा ज्ञान हो गया था. बहुत सुपेरियर, जैसे कहते हैं हम लोग वंडर बॉय कहते कि 11 साल का बैचलर्स डिग्री हो गई, 14 साल का मास्टर्स डिग्री हो गई, 17 साल का PhD हो गई, 18 साल हो गया तो उसको जॉब भी मिल गया नासा में कहीं भी. ऐसे उद्धव थे. बोला एज 5, ऐसा उनका उल्लेख का वर्णन है. ही न्यू ब्रह्म ज्ञान, पीरियड, एंड स्टोरी, है ना. ही वॉज अ डिवोटी though at heart. He worshipped, literally worshipped Krishna every day, even though he had ब्रह्म ज्ञान. So ऐसे उद्धव भगवान को पूछते हैं जाते समय कि तो सांख्य मार्ग में ये बताया, इस मार्ग में वो बताया, 24 अवतार है, 10 अवतार है, 11 ये है, वो है, प्रकृति का ऐसा विभाजन है, इसमें से क्या, कौन सा सच है अंत में? Which one is real? Which one is truthful? Which one is... So this is a simple answer to say they're all good, they're all real. This is Krishna, this is what he says in the answer to it. It depends on how you're seeing it. The one who says there are only 14 manifestations of Prakriti, उसका विचार वहाँ तक गया तो he is right in his place. That is his truth. He's not lying, not making it up. जो जिस ऋषि मुनि ने कहा कि अरे ऐसा ऐसा है, मैं ऐसा देख रहा हूँ, ऐसा है, तो that's his truth. वहाँ तक पहुँचा उन्होंने डिस्क्राइब किया. इसने कहा नहीं 14 नहीं 24 है, तो that is his truth. 24 है का truth does not negate 14 है कि 14 is in the 24, है ना. So हमें इस झंझट में नहीं पढ़ना है कि ऐसा है कि वैसा है कि ये है कि वो है. रामकृष्ण परमहंस कहते थे, उनके रामकृष्ण वचनामृत अगर पढ़े तो very simplified, ना. The greatness of Ramakrishna Paramahansa is that इतना बड़ा ज्ञान very simply presented, simplistically. तो वो कहते थे कि ज्ञानी, वो तो उनको ज्ञान तो था, लेकिन कहते थे ज्ञानी जाएगा बगीचे में आम के, तो इसमें फंस जाएगा कि ये कौन सी जाति का है, ये हापुस है या ये इधर वाला कौन सी जाति का है, कितना ऊंचा है, इसके पत्ते कितने हैं, कब लगाया था, कितना पानी देना पड़ा, ये ऐसी ज़मीन में ये आता है. वो जब while they are doing that, मैं जाके आम खाने लग जाता हूँ, क्योंकि मेरा फोकस है कि आम लगाए किसके लिए, है ना. ये पेड़, if I were to ask you, if you plant a mango tree in your yard, there would have to be a purpose behind it normally. And if I ask you, why did you plant a mango tree? I think there would be an answer to it. And the answer would be simple. And simple answer, common answer, same answer. And so Ramakrishna would have us go to that first, straight. Focus first on that, the purpose of the planting the mango tree. When you have labalab, aam lage hai, low-hanging fruit, the proverbials, so grab one, pluck one and start eating. वो कहते थे ऐसे मैंने ज्ञान की तो यात्रा करी है, लेकिन जो मैं भक्ति में बैठ गया, भगवान के प्रेम की जो मिठास का अनुभव किया, तो अब तो मैं खाली आम खाने का काम करता हूँ. कोई मतलब नहीं मेरे इससे कि भगवान ने कितने पौधे लगाए, किसके कितने पत्ते हैं. वो विवेकानंद को जब पढ़ाते थे, विवेकानंद had a very sharp intellect and he would like push back totally on it. So उनके wonderful some conversations है रामकृष्ण और विवेकानंद के. So you should, if you are able to, you should read it. They might be on the net also. But anyway, so getting back to the point, as we wrap up 2018 and start 2019, I would encourage you to consider making God your own, personal, very intensely, like as in falling in love with.
That the most personal is the one you love. I would have you go back to the times when you were in love, right? You remember those days? Right? Remember those times? Come on, you never want to forget those. Every day you want to live with love. Every day there should be. फिर क्या जिया यार? प्रेम को भूल गए तो क्या याद रखा? क्या मतलब रहा जीवन में? कुछ नहीं होगा, 2-4 रोटी कम हो जाएगी, 1-2 जैकेट कम हो जाएगी, 2-4 टोपी जूते कम हो जाएगी, कुछ नहीं होगा. कौपीनवंता खलु भाग्यवंता. लंगोटी दूसरों के लिए लंगोटी एज लॉन्ग एज है, दूसरों के लिए. अपनी लंगोटी जब तक है तब तक सब फर्स्ट क्लास है, कोई ठीक नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. प्रेम को कैसे छोड़ दिया? प्रेम को कैसे भूल गए? ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई. How come it's not front and center? How come every day is not lived with the deep thought of love? Then what? Really, this is serious stuff. Forget Gita. वो तो बाद में आएगी, कहीं नहीं जाएगी. First things first, brother. Right? भगवान नहीं मिल सकते, मिलेगी नहीं, भगवान ही प्रेम है. Every day love has to be front and center. The feeling of love, the thought of love, the effort to love, the consciousness of love, the importance of love. In any interaction, manasa vacha karmana. मन में जो विचार है उसमें make sure they're steeped in love. उसको विचार को बाहर निकाला तो छलक रहा हो प्रेम, है ना? गिला हुआ हो प्रेम में. जब वाणी निकले तो ऐसी शीतल मधुर हो कि obvious है कि this guy loves me, this person cares about me, it matters, I matter to him or her. It is possible, it is simple, it is a must. और जो कार्य कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, if it's not reflecting, if it is not showing that this is really truly coming from love, then something is distorted, some effort is short, then we're taking shortcuts. In the name of efficiency, we're ruining it just to get there quick. And there's no place for that, there's no need for that. So प्रेम को कभी ना second place कभी ना हो जीवन में. First, always be first place. बाकी नियम पाले ना पाले. And so तभी तो भगवान का अनुभव होगा. इसलिए और भगवान के तो प्रेम में पढ़ना है ना. ये तो बाकी अदरवाइज तो सत्संग तो बहुत मिल जाएंगे, हजारों लाखों सत्संग मिलेंगे. शास्त्र है, एंडलेस है. एक जन्म के कितने जन्म नहीं पूरेंगे, इतने शास्त्र है. लेकिन इस कोर को, इस सेंटर को ना छोड़े. एक बार भगवान में प्रेम हो गया तब सारा काम हो गया. बिल्कुल. I mean, I could not say, I cannot describe what that means or how it is, but I'll keep saying it. एक बार भगवान में प्रेम हो गया. I think you all know what love means. I think you all have loved and do love. Sometimes we forget, sometimes we disregard, sometimes it takes a back seat. Second priority, it's not front and center. So I would encourage you to bring it always front. वो लगाते थे, इस हेलमेट पे लगाते हैं तो जहाँ भी जाए आगे सामने वो टॉर्च रहेगा. ऐसे प्रेम की फ्लैश लाइट को सामने रखे, जहाँ भी जाए नज़र, जहाँ भी जाए हाँ प्रेम की नज़र हो पहले सामने, जैसे है ना. कि अल्टीमेटली देन यू देर सवेर जा कर के क्या जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, क्या जाने वो फ्लैश लाइट कब नारायण पे पड़ जाए और उसमें प्रेम हो जाए, है ना. फिर एकदम रिजॉल्व, प्रॉब्लम्स रिजॉल्व, रेजोल्यूशन, सारी गांठ छूट गई, निर्ग्रंथ हो गए, सारी ग्रंथियाँ छुट्टी हो गई. जो चित्त जड़ ग्रंथि उपनिषदों में वर्णन आता है. हमारा प्रॉब्लम वो उद्धव भी पूछते हैं, उसी संवाद में उद्धव आगे पूछते भगवान को भागवत में 11वें स्कंद में कि अगर शरीर जड़ है, शरीर तो कुछ करता नहीं, शरीर को तो अपनी अकल नहीं है, इसको तो अन्नमय कोश करके कर देना, इसको कुछ खुद समझता नहीं. और आत्मा तो अकर्ता है, आत्मा को तो कुछ चाहिए नहीं है, आत्मा को कोई गोभी की सब्जी नहीं चाहिए, कुछ नहीं, श्रीखंड नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, किसकी जरूरत नहीं, दे तो खाए भी नहीं सके. आत्मा को कोई आवश्यकता नहीं है और शरीर को अपनी अकल नहीं है. जिसको अपनी अकल नहीं है वो कुछ कर नहीं सकता. अभी ये बैठा है तो ऐसा ही बैठा रहेगा, है ना. जब तक इसको घर को बेच दो तभी ये ऐसा बैठा रहेगा. ऐसा ही शरीर जड़ है, अपने आप कुछ नहीं करेगा. इसका चेतन आत्मा जब इसको उठाएगा, जब कुछ करेगा. लेकिन आत्मा को तो की आवश्यकता ही नहीं है, आत्मा को तो कुछ करना ही नहीं है. तो फिर ये कार्य करता कौन है, ये हो रहा क्यों है? कोई भी कुछ भी करता है तो क्यों करता है, किसके लिए करता है? वेयर इज द प्रॉब्लम? व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड. व्हाट इज इट? And this is what Uddhava asked Krishna. You're telling me that I'm Atma and that Sharir is Jad and I'm not Sharir. तो ये झंझट कहाँ से आ गई? तो उसके उत्तर में भी भगवान कहते हैं, और ऐसा ही उपनिषदों में भी है. ये सारे उपनिषद, एक भगवद गीता के हर अध्याय के अंत में आता है ना, उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे.
षष्ठ अध्याय अभी जो आएगा तो, है ना। तो जैसे ये उपनिषदों का सार है, भागवत में भी ऐसी बात है। तो भगवान कहते हैं कि वो जो ग्रंथि पड़ गई, गांठ पड़ गई, चित्त जड़ ग्रंथि, चित्त चेतन, आत्मा चैतन्य, विजडम नॉलेज अलोन, और जड़ मतलब मैटर। सो द एनर्जी एंड मैटर टुगेदर हैव कम टुगेदर। एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन का है, या एनर्जी एंड नॉलेज, एनर्जी एंड मैटर, इंफॉर्मेशन एंड मैटर, या नॉलेज एंड मैटर, या एनर्जी एंड मैटर, हाउएवर यू अंडरस्टैंड इट, they have combined, momentarily they have combined। जैसे जब लहर उठती है समुद्र में, तो पानी, समुद्र का पानी अपने आप नहीं उठता ना, उसको मजा, चलो मजा, आज मजे करेंगे, जंप मारेंगे, ऐसा करके पानी नहीं उठने लग जाता। कोई हवा आती है, लिटरली मैटर कम्स, एयर, हवा आती है, उसको उठाती है थोड़े समय के लिए। तो जब दो मिक्स हो गए, हवा और पानी, उसकी लहर बन गई, है ना। और जो हवा छूट गई तो फिर से नीचे गिर गई। ऐसे ही हम जो चैतन्य, हम तो चैतन्य, हम तो शरीर नहीं, हम तो जड़ नहीं, ये तो पक्का हो गया, गारंटीड, राइट, प्रॉमिस। हम शरीर नहीं, पक्का, ये तो पक्का है ना, शरीर के संबंध नहीं हमारा कोई, है ना। तो हम आत्मा है, लेकिन यहाँ पर गांठ बन गई, चित्त जड़ ग्रंथि हो गए, चैतन्य की और जड़ की ग्रंथि मतलब गांठ। पहले वो ग्रंथ कैसे होते थे, पत्ते पे लिखते थे, फिर उसमें छेदा करके वो डालते, टहनी पे या घास डाल के उसके फिर गांठ बांध देते थे। तो जब ग्रंथि बन गई, सारे जब सारा लिख के हो गया, डाल दिया, फिर ग्रंथि बन गई, तो उसको फिर ग्रंथ कह देते, ये ग्रंथ हो गया, फिर अभी दूसरा ग्रंथ लिखे, है ना। तो वो चित्त जड़ ग्रंथि जैसी हमारी हो गई अभी, उसके कारण तो भगवान कहते हैं वो न जड़ करता है न चेतन करता है, वो ग्रंथि थोड़े समय के लिए एक्ट्स अप एज इफ। एंड सो द होल पर्पज ऑफ लाइफ फॉर अस, द होल साधना is to untie the knot। चित्त जड़ ग्रंथि को छोड़े, जो चित्त का चित्त अलग हो जाए, जड़ का जड़ अलग रह जाए। चैतन्य जैसे अपने स्वस्थ स्वभाव में, अपने स्वरूप में प्रकाशित हो जाए, अपना खुद का अनुभव कर ले, मैं चैतन्य वैसा अनुभव कर ले। और फिर जड़ आए पीछे तो आए, ना आए तो आए, जब छूट जाए 80 साल हो जाए, 90 साल हो जाए, 70 साल, जब छूट गया तो छूट गया। जड़ लेना देना था नहीं कुछ उसके साथ, कोई मुसीबत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। लेकिन चैतन्य अपना फिर चैतन्य बन के उड़ जाए, तो वो चैतन्य का स्वभाव है प्रेम करना अपने सोर्स के साथ अपने, तो वो अपने आप ही अनुभव होने लगा है, जैसे भगवान के साथ प्रेम। जैसे मैंने एक बार उदाहरण दिया था, मैंने शायद कई साल हो गए होंगे, एक काली रस्सी और सफ़ेद रस्सी ली, प्योर ब्लैक एंड प्योर वाइट रोप्स, एंड आई टाई ए नॉट, एंड व्हेन आई होल्ड द नॉट एंड आई आस्क यू, इज द नॉट ब्लैक or is the knot white? And you cannot say it is only black or it is only white, because it has both threads on it. But I can untie that knot. Was never, because the knot ही नहीं existing थी. It was always, even in the knot, through the twists and the turns, they were always two separate. As they are unentangled, they become separate. ऐसी जो ग्रंथि पड़ गई, ऐसे हम ग्रंथि बन गई है यहाँ पर। मसाला गड़बड़ हो गई है ना, कि है तो वास्तविक में चैतन्य, but it's been supposed that white has been so much wrapped up and covered up by the black, that Chaitanya has been so much covered up, so much influenced, so much buried deep down by the jada. The internal, the what's inside has been so much completely lost by the external, by the outside, कि उसका नामो निशान नहीं, पता ही नहीं कहाँ है, क्या है, कैसे है, हम क्या थे। And the sari sadhana, just for context, what we're doing is through constantly digging, constantly shining, जिस वो डायनासोर को कोई आर्कियोलॉजिस्ट निकाले, धीरे 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 छोटे ब्रश से फिर फूक मार के फिर से पानी डाल के, ऐसे हम बार बार महीना महीना आकर के प्रयास करें, ताकि प्रकाशित हो जाए, सामने दिख जाए अपने आप, अपने ही अंदर के अपना स्वरूप। So all that लंबा चौड़ा व्याख्यान इसलिए कि प्रेम को again I've said it 100 times now, 1,000 times, front and center, because when you untie the knot, the experience will be of pure love, nothing but love. You are love. You are made in love. Even the body was made in love, right? And because of love. So it is inescapable, and so it is best to accept it. It is best to align with it. And that alignment, it is best to align with it because we're already it. Does that make sense, Sanjay bhai? Alignment, right? Because we're already it. That alignment, often misunderstood word in the Gita, is sharanagati. शरण शब्द आया तो लोगों ने फटाक से उसको एकदम चका कर दिया, शरण मतलब
वो नीचे पड़ जाओ, तुम जैसा कहोगे वैसा। उसको क्या जरूरत है हमारे शरणागति की ऐसी है ना। और वो तो अलग, हम उससे अलग है ही नहीं ना भैया। जब आगे जब पता चलेगा तो ऐसी बात नहीं है ना कि दो थे, वो एक राजा बन के बैठा है और हम सब उसके नौकर चाकर बन के झाड़ू लगाने के लिए अपॉइंट कर दे, ऐसी बात ही नहीं ना। वही तो बन के बैठा है, वही तो झाड़ू लगा रहा है, उसी के घर में झाड़ू भी वही है, कचरा भी वही है। यहाँ तक बात होगी। इतनी यूनिटी है, इतना हम यूनिफाइड, इतना सिंगुलैरिटी है, इतना वननेस है। बट अलाइनिंग विद द वे थिंग्स आर, शरणागति, माम एक शरणम व्रज, 18वें अध्याय में कहते कि अंडरस्टैंड माम एकम, माम इज मैं, आई एम एकम ओनली, I alone am. Align with the truth, align with the fact that I alone exist. I am it. I alone am it. When you say I, it could be you, the I. When I'm saying I, it could be I, the I, me, the I. When God is saying He, the I. Because there are not you, I is separate from me, I is separate from God, I is separate. The little wave and the big wave and the whole ocean, they're not separate. Yeah, we've momentarily taken the forms. The bad character in your dream and the good character in your dream, and you, the dreamer, who has them both, are not separate. So the little eye, good eye, big eye, small eye, bad eye, they're not separate. They're only one, momentarily appearing different. है ना? स्त्री के शरीर में, पुरुष के शरीर में, भाई हो, बहन हो, जैसे. So that's sort of kind of the summary. Maybe let's say from the time that we've started until now. So we should make some progress today. So I think last time we were battling the mind. Yato yato nischarati manaschanchalam astiram. That was the last look that we've done. कि जहाँ जहाँ मन जाए, है ना, कि वो हमने मन को कंट्रोल करने के लिए कहा था भगवान ने इसमें आत्म संस्था शनय शनय ऊपर में, मैंने कहा था धीरे, शनय शनय मतलब धीरे धीरे. सैटर्न हैज अ स्लोअर मूविंग ऑर्बिट, शनि. शनय शनय ऊपर में, उपराम होते जाए, मन को हटाते जाए, धीरे धीरे मन को हटाए. दैट वाज द एडवाइस. कैसे मन को कंट्रोल में रहे, प्रयास करें थोड़ा थोड़ा धीरे. बी कमिटेड टू इट, स्लोली करे. देखो कितना इंटेलिजेंट, बेबी स्टेप्स. शनय शनय मतलब बेबी स्टेप्स. तब की भी बातें थी, ऐसा नहीं कहते कि लीप्स एंड बाउंड्स की जंप एकदम छोड़ दे, एकदम चले जाए, एकदम बिल्कुल कोल्ड टर्की की कहीं बात ही नहीं है गीता में, है ना. बेबी स्टेप, शनय शनय ऊपर में, बट डिसाइडेडली थोड़ा थोड़ा कम करते जाए तो होगा. मोमेंटम को कम करे, एकदम क्रैश होने वाली बात तो अलग है. लेकिन जब वी वांट टू स्टॉप आवर कार, वी हिट द ब्रेक स्लोली, राइट. चाक से नहीं दबाते, है ना, फिर से कोई बैठेगा नहीं गाड़ी में. तो धीरे 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 अपने आप रुकती है गाड़ी. और वो रुकने के बाद भी थोड़ा मोमेंटम होता तो थोड़ी और आगे जाती. ऐसे ही ऐसे जीवन में पूरा भी रुक जाता, थोड़े संस्कारों के कारण थोड़ी नज़र कहीं जाएगी, थोड़ा कुछ खाने की इच्छा होगी, थोड़ा कुछ देख लेने की इच्छा होगी. दैट इज ओके. दैट्स लाइक ब्रेक मारने के बाद थोड़ा तो झटका लगेगा. इट्स ओके. डोंट पे टू मच अटेंशन टू दैट. स्टे फोकस्ड ऑन स्लोली स्टॉपिंग ऑल दिस एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, है ना. सो शनय शनय उपरमे. और उसके साथ भगवान ने कहा था यतो यतो निश्चरति, जहाँ जहाँ मन चरने जाएगा, यानी इधर का उधर का खाने जाएगा. मन कैसे खाता है? मन नाम का तो ऑर्गन ही नहीं है ना. अभी तक किसी ने कोई नहीं पता पाया मन कहाँ होता, कहाँ है, कौन उसका शेप क्या है, उसमें क्या होता है. मन तो कुछ नहीं है. फिर क्या मन मन. और सारी दुनिया मन के पीछे पड़े. किसी भी कल्चर में, किसी भी नेशनलिटी में, किसी भी रिलीजन में, कहीं भी जाओ, इस राइट द माइंड माइंड माइंड. और व्हाट इज द माइंड? सो आई मीन हमारे शास्त्र में तो बहुत फर्स्ट क्लास डेफिनेशन है उसकी. वो जो ग्रंथि की बात बता, एनीवे आई थिंक आई हैड ड्रॉन दिस यहाँ पर, है ना. वो दैट रिमेंबर द होल चिंतन के समय जब बात चल रही थी, अहंकार के समय में शब्द स्पर्श रूप रस गंध के द्वारा आता पहले आहार किया. तो मन खाता है, शब्द को खाता है, दृश्य को खाता है, वाणी को, शब्दों को खाता है, जो सुन रहे उसको. तो यतो यतो निश्चरति, जहाँ जहाँ भी मन चरने जाए, खाने जाए, कि चलो अब ये खा लेंगे, ये देख लेंगे, ये सूंघ लेंगे, ये जो भी पांचों इंद्रियों द्वारा. तो यतो यतो निश्चर मन चंचलम अस्थिरम. चंचल है, चलता रहेगा बार बार. ये होने के बाद कहेगा और दूसरा कुछ, और दूसरा कुछ, वैरायटी चाहिए रहेगी. अस्थिर भी है, अनस्टेबल भी है. उसको धीरे धीरे बार बार आत्मा में लाए.
या फिर धीरे धीरे समझा के कि अपनी ओर खींच के लाए। जैसा मैंने उदाहरण दिया था, शास्त्रों में आता है, अपने पुराणों में आता है रादर, नारद जी का सभी जानते हैं ना, नारायण नारायण करके जाने की 50 जगह है। इस लोक में गए, उस लोक में जाए, इसकी आग लगा दी, उसको भिड़ा दिया, आने की जगह वापस हमेशा नारायण के पास है ना। तो यू वुड गो 50, it literally goes to 50 different places, but always returns to the one same space, Narayan, Narayan. That's why he's Brahma Rishi. That's why it's like supreme. He's acceptable to Narayan as this supreme Rishi. नारद मुनि का स्थान सब जगह की एक बड़ी उनकी इंटेलिजेंट बात है कि he always comes back to the one place. ऐसे हमारा मन कहीं भी जाएगा, देखे ना इधर उधर खाने जो भी, लेकिन उसको बार बार प्रयास पूर्वक बेबी स्टेप्स लेकर कि तू उतना कर ले, खा ले, लेकिन वापस आना यहाँ पे दूसरा कुछ खाने से पहले। Let us think together, sit with me. Let us think together about who I am really. Then you can go do whatever, see whatever you want to see, but then come back to me. Let's sit together again, let's think about it. धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चिंतन बढ़ाए, और तो वो थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाता है, फिर जाने की जगह कम और आने की जगह, रहने की जगह रहने की हो जाती है, जैसे ध्यान में होती है। ध्यान में वही तो प्रयास करते हैं ना हम लोग, बैठ के एक जगह पे मन बैठने नहीं देता, कितना चालू हो जाता है स्टॉर्म, फिर लेकिन फिर भी निग्रह पूर्वक, फिर भी प्रयास पूर्वक करते रहे तो फिर धीरे धीरे शांत होने लगता है। और बैठे रहे तो बिल्कुल शांत हो जाता है, और बैठे रहे तो मन तो गायब भी हो जाता है, माइंडलेस स्टेट हो जाती है ना, माइंड फ्री जैसे हो जाती है। पर इसमें प्रयास है ना, एवरीबडी हैज टू ट्राई इट, मेक एन एफर्ट, धीरे धीरे प्रयास करने का। ऐसी ही बात यहाँ पे कही, बड़ी प्रैक्टिकल बात है, बड़ी सिंपल बात है, पॉसिबल बात है ना। कोई ऐसा उटपटांग प्रिस्क्रिप्शन नहीं है यहाँ पे जो हम न कर सके। मैंने कहा था ना भगवत गीता का महत्व कैसे, वो इट कम्स वेयरएवर यू आर, whoever you are, wherever you are, it'll come and then uplift you from there. Has no prerequisites that you should have this and this first, check, and then you can get to it. You don't have to go to Gita through your efforts. When the Gita comes in your life, it picks you up from wherever you are, and it's very simple. Through simple prescriptions will take you if you follow it. Obviously, naturally you would have to follow it. जबरदस्ती बांध के खींच के नहीं ले जाएगी, क्योंकि उसमें प्रेम छूट गया। फिर प्रेम का लक्षण क्या है? फ्रीडम, राइट? हाउ डू यू नो दैट यू लव समवन? यू गिव देम द फ्रीडम. हाउ डू यू नो दैट यू लव योर चिल्ड्रन? हाउ डू यू नो दैट यू लव ईच अदर? फ्रीडम इज द फर्स्ट साइन ऑफ लव. तो अगर भगवान का हमें प्रेम है, तो अगर खींच के बांध के ले गए तो फिर प्रेम कैसा है? इसीलिए तो भटकने दे रहे, जितने जो करना है, जितने 84 लाख के फेरे लगा के जब प्रेम होगा तो फिर अपने आप चल लग जाएंगे उसके पीछे, है ना. सो नेक्स्ट श्लोक 27 इस प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम. तो हिंदी में इसको पढ़ के, क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है. दिस इज अ बिग कॉन्सेप्ट, बिग आइडिया, बिग बोल्ड आइडिया. शांत रजसम, जिसका रजोगुण शांत हो गया, फिनोमिनल इफेक्ट. देयर इज नो फीलिंग लाइक इट. रजस शांत होने की जो है, दिस इज व्हाई एवरी श्लोक हियर इज लोडेड. So we'll talk about it in a moment. Yeah. जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव से हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है. Just for integrity and to give credit where credit is due, this I read it also. This is the Gita Press, Gorakhpur ki Gita hai. This is their translation. Reading alone doesn't fully communicate, which is why then we discuss also. Lekin it's an excellent. I found this to be a very, very good translation of Sanskrit in Hindi, so I stick to it. So prashanta manasam yenam, जिसका मन प्रशांत हो गया. शांत तो अलग बात, like really pacific, really pacified, not turbulent at all. मतलब बड़े बड़े बातों में भी नहीं turbulent हो जाए. तो शांति का अनुभव थोड़ा तो कर, ध्यान के बाद थोड़े समय शांत रहते हैं, कुछ 2-4 घंटे अथवा सत्संग के बाद अथवा कुछ. लेकिन जब ऐसी स्थिति हो जाए कि बड़े में बड़े भी जाओ. 2 sessions ago you would listen to a श्लोक इसी में, यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते न अधिकम दता, कि यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुनाम अपि विचालयेत. गुरु मतलब बड़ा,
बड़े में बड़ा दुख भी, पहाड़ भी टूट पड़े, जैसे इन मैनर ऑफ स्पीकिंग, दुखों का पहाड़ भी टूट पड़े तो भी जिससे विचलित न हो जिसका चित्त, ऐसा ना समझे कि अरे अरे अब तो सब बिगड़ गया, अब तो कुछ नहीं रहा, फिर क्या मतलब रहा। किसी जीवन से हमारे कोई व्यक्ति अगर निकल जाए, वस्तु निकल जाए, कोई परिस्थिति बदल जाए, देश बदल जाए, काल बदल जाए, सब कुछ बदल जाए, शरीर कैसा भी कुछ कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, उससे ये ना हो कि ओ माय गॉड आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, देयर इज नथिंग लेफ्ट, व्हाट्स द पॉइंट। ऐसा जब न लगे, नो मैटर व्हाट हैपन्स, नो मैटर हाउ बिग द डिजास्टर और द कैलेमिटी और द इंसल्ट or the deprivation or the loss, no matter how big the loss is, 500 points down, 800 points down, right? What's happening? What's going on? Right? So could you to that you are able to observe, you should be still planning for it, but not becoming turbulent with it. That was that shlok. ऐसे ही idea है यहाँ पर प्रशांत मनसम. I would encourage you to meditate on these words. अभी तो मेरी बकवास चल रही है तो इसका इतना इफेक्ट नहीं होगा. This is just I'm only pointing towards it. You will have to see it. And that process of seeing it is through meditation. I would not want you to be left deprived of the depth of the word prashant manasam. जिसके मन में ऐसी शांति, ऐसा इमेजिन कर कि बर्फ की बड़ी सी लादी छाती पर रख दी, ठंडी हो गई. Oh my God, I feel so cold, quiet. कोई गर्मी नहीं, कोई जलन नहीं. मन में चित्त में कोई सारी जलन मिट गई. नो एगनी, नो एंजाइटी, नो मिजरी. ऐसे जो शांति की जो स्थिति और स्टेडी रहे, कांस्टेंट रहे. दैट इज द आइडिया. वर्ड्स डू फॉल शॉर्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग द मैसेज ऑफ द 6th chapter पर्टिकुलरली. प्रशांत मनसम येनम, जिसका मन भी ऐसा शांत हो गया. ऐसे योगिनम सुखम उत्तमम, उसको फिर उस स्थिति में सुख, जैसे चिल्ड बियर की बात करते हैं कि उसको गर्म बियर की कैन दे दे रूम टेम्परेचर की, उतना मज़ा नहीं आएगा. राइट, वो चिल्ड करके उसके ऊपर फिर ऑन द रॉक्स मे बी इवन सॉल्ट, एंड उसको, और क्योंकि सॉल्ट से उसकी फ्रीजिंग पॉइंट चेंज होता है. सॉल्ट चेंजेस द फ्रीजिंग पॉइंट, ऑल्सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. सो देन इट बॉयल्स सूनर बट इट ऑल्सो फ्रीजेस मोर. 4 डिग्री का फर्क होता है. अनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, 9th grade physics in high school. If you remember. तो इसलिए वो on the rocks या on the salt कहते हैं. So जैसे उसका मजा उसके गर्म बियर में नहीं आएगा, उसको वैसा. What the heck does that have to do with this? Like, where did I come with that from? I don't even drink. Like, seriously. How do you know? I think I was trying to describe the sukham. I'm like, how did he know? Well, there were times. I promised you nothing but the truth, brother. So I think I was trying to describe sukham uttamam. Uttam sukh जो है, the high quality sukh. Ordinary sukh नहीं, normal sukh नहीं. उसके बिना, the one who knows that, he will say, well, do you have one in the refrigerator? Right? If you उसको अगर ऐसे ही थमा दिए, pantry से निकाल के 6-pack, don't you have one in the freezer and the refrigerator? Can I have that? तो क्योंकि उसने उसका अनुभव किया, he knows the difference. There is a big difference. Right? Now the chilled beer and the one that is not. ऐसे ही ये जो सुख हम जो अनुभव कर रहे हैं, ये एकदम बिकाऊ, एकदम बेकार, एकदम टपरी वाला सुख है. इसकी कोई दो कौड़ी का सुख का इसकी कीमत नहीं है. ये जो खा पी के नाच गाना करके मजे, कपड़े पहन के इधर उधर भटक के जो सुख, ये कोई उत्तम सुख नहीं है. अगेन, उद इज हाई, तम इज ग्रेट. उद्तम, द सुपेरियर, द बेस्ट, द मोस्ट इंटेंस सुख is not the one that we're experiencing right now, no matter what. And that's why that he is taking us there. Prashanta manasam yenam yoginam. So now I totally remember why I was saying that. कि जैसे वो ठंडे बियर वाले को मजा आएगा. There is a particular condition you have to achieve. This is the point that I was trying to make through that example. There is a particular climatic condition, particular physical condition you have to achieve when you really experience the joy of a good beer or whatever it is. ऐसे ही उत्तम सुख के लिए भी condition की जरूरत है, and that condition is the prashanta mana.
You can really experience that only when the mind is prashant, deeply satisfied, deeply peaceful, deeply joyful person, like really no strings attached, uninfluenced, undistracted. जब ऐसे मन की कंडीशन होगी जैसे द चिल्ड पार्ट फॉर द बियर से जब प्रशांत होगा तब उत्तम सुख का अनुभव, उसकी जो टेस्ट है ना, वो सुख की जो टेस्ट है, उसकी जो हिंदी में चाव, मराठी में चाव कहते हैं, तो उसका तभी पता चले कि उसका मजा क्या है ना. इट्स हार्ड टू डिस्क्राइब विदाउट अ प्रशांत मन का अनुभव. इसलिए मैं कह रहा था कि इसका ध्यान में इस पर विचार करना, व्हाट माइट दैट बी लाइक. Have I experienced prashant state? And I think you would have. You will find that there were times in your life, either through meditation or something really that happened, that you felt like, for a period of time, you felt like for 2 days, 3 days, maybe a few hours, that I really don't need anything. I'm just like so good to go. This is the best. This is perfect. कि मन में ऐसा फिर कहीं विचार नहीं है कि अब the only थोड़ा और इसमें थोड़ा ऐसा कुछ नहीं. वो जो प्रशांत मनसम, I will continue to drive this point because I'm trying to make effort. It is hard to describe, and so without giving up on you, I'll continue to go from different point angles to bring that out somehow so that you're attracted to it and you feel like I want to taste that. Chill beer करते I want to taste that. But, get some cold somewhere, bring some ice from somewhere. So as the ice is to the chill beer, prashant man is to the sukh uttam, is what I was trying to say. So focus on that also. So how do you do that? Partly upa iti shantarajasam, right? You were saying what is that? Shantarajasam. Upa iti shantarajasam brahma bhutam akalmasham. So kalmash is stain, kalima, gandagi. Akalmash is stainless. And it's just पाप को भी संस्कृत में impurity. In other words, to put it simply, kalmash is impurity, akalmash is purity. So when you look within your own mind, when you say something to someone, when you do something, or when you're thinking something, is that a pure mind? Is that a pure thought? Is that everybody knows? Is that a clean, pure thought? Agenda-free, no strings attached, no selfish motive, only because that's the right thing. It stands on its own as the right thing, and therefore I'm thinking of it, I'm saying it, and I'm doing it. Because that is established in its own goodness, standalone goodness, not good for me or for someone else. That makes it relative. फिर वो impure हो गया, right? In the pure goodness, शुद्ध सत्व में जब हमने कुछ motive डाल दिया, personalize कर दिया उसको, मेरा या तेरा, फिर उसमें impurity आ गई, contaminated हो गया. तो ऐसा जब न हो, that is akalmash, that brahma bhutam akalmasham. That person then becomes Brahma Bhut. The person then, whatever the person thinks or says or does, is for the whole, not for the parts. It is for the absolute, not for the relatives. Na? Abhi to we are living in the realm of relativity. Right now we're living, thinking, doing whatever we're doing, saying, in the realm of parts, units. This is the first unit. And then those associated with me is the bigger unit, and then perhaps the outer circle is the bigger unit, but all my thoughts, all my words, all my actions are unitized, broken apart. Okay, let me see about मैं मेरा तू तेरा, है ना? ऐसा जब न हो, उसे ब्रह्म भूत कहते हैं. The one who is constantly thinking of the whole. There is no notion of parts and units, or limits or boundaries, because they are all fake. They're all fictitious. They're all artificial. There are no real boundaries. भारत पाकिस्तान ये जो भी ऐसे actual boundary तो भगवान ने नहीं बनाई ना, देशों की भी. Mexico जब वो आग चढ़ेगी तब पक्की हो जाएगी. तो anything in nature, the way heat transfer occurs, for example, if you remember mass transfer ho, heat transfer ho, engineering fundamentals, the way the planets go around, the solar systems, the way the ocean flows, the way the wind blows rather, उसमें partition नहीं होते हैं. It is a continuous and natural phenomenon, right? जैसे hurricane भी आएगा, समुद्र में पानी भी बहेगा, आग लग जाएगी, wildfire भी हो जाएगी. तो ऐसे compartmentalized
digitized. It's a continuous flow. Anything in nature, everything that is natural is continuous. ऐसे ही आत्मा भी है, ऐसे ही हमारा जीवन भी वास्तविक में हमने fictitiously, fakely, artificially बाउंड्रीज को स्वीकार कर ली. जब जैसे ही जन्मे तो कह दिया कि तू बेटी है, तेरा नाम नीलम है, और तेरा ऐसा तू देसी है ना, फिर गुज्जू है. तो एक पर एक लेयर्स डालते गए तो पक्का होते गया वो. तो उसको बिल्कुल पक्का अपना मान के चल पड़े. अब तो नीलम को ठीक रखना है, अब तो नीलम के बच्चों का ठीक करना है. लेकिन दीदी तो नीलम से तो बहुत बड़ी. नीलम तो कुछ कहीं की नहीं थी उसमें तो, है ना. ये तो आर्टिफिशियल बाउंड्री है, शरीर की आर्टिफिशियल बाउंड्री है, मन की आर्टिफिशियल बाउंड्री है, मानी हुई बाउंड्रीज है. तो ठीक है, जो करना जरूरी है उसके लिए कर, लेकिन बिगर द डिफॉल्ट सेटिंग शुड बी इन द होल, इन द कंटिन्यूस, in all. I told you this is a very loaded chapter. This can solve lots of problems, but it is very demanding also. It demands, and I demand also. So we're not going to fast forward in it. So that is the idea behind Brahma Bhut, the one who has experienced the oneness of all and the identity with himself or herself, that it's all the same and there is only one. फिर उसमें पाप के लिए कोई स्थान ही नहीं. अगर एक ही है तो फिर मैं अपना करके कैसा बढ़ा, स्वार्थ की भावना कैसे आएगी. सारा पाप स्वार्थ से निर्मित है, अपने जो इग्नोरेंस से निर्मित है ना. सारे पाप का जड़ कहाँ है? दिस इज फ्रॉम द शास्त्रास, इज फ्रॉम द लिमिटेड नॉलेज ऑफ द सेल्फ, थिंकिंग दैट आई एम दिस पर्सन, दिस वन पर्सन, दिस मैन और दिस वुमन इज द रूट ऑफ ऑल सिन. कहाँ? ऐसा कोई पाप नहीं है जो इससे नहीं निकली हो कि अपने आप को समझ लिया कि मैं एक आदमी हूँ. सबसे बड़ा नुकसान वहीं पे हो गया ना. और सबसे बड़ा पुण्य भी कहाँ वैसे शास्त्र में, कि जो अपने आप को आत्मा रूप से जान लिया, सब में है, सब है, तो फिर उसके पुण्य की कोई एंडलेस, फिर द वननेस ऑफ ऑल. फिर स्वार्थ की भावना ही नहीं रही, चिंता भी नहीं रही. चाह गई, लास्ट टाइम रिमेंबर, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह. लास्ट टाइम थे ना तुम? उत्पल शाह, तुम्हें कह रहा था शाह हो. शान के शाह, बादशाह, बाद वाले शाह नहीं, हम कह रहे थे अब के शाह, अपना अभी के. चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह. ऐसे हम अभी हो सकते, शहनशाह बन सकते, है ना. ये कहाँ अटक पड़े? So that's Brahma Bhutam Akalmasham. Then naturally that soul becomes stainless. The stains drop. Why? Because the stains were never on it to begin with. There's no question of dropping. I had accepted them as if they are on me through my ignorance. The ignorance that I am only this much. The moment I realize that I am not only this much, then I look around and see that there was no stain. कोई कालीमा नहीं थी, कोई पाप था ही नहीं. No. So through this practice, we're trying to get to that experience. By understanding this and then practicing on it, we're trying to get to that experience. It is a real experience. There is nothing, a few sessions back I had said, there is nothing worthier than that experience. No parasailing, no scuba diving, no bungee jumping, no nothing, no experience, all of them together can ever come close to this experience of the oneness. So number one, this is the worthiest pursuit of human life. Number two, everyone deserves it. This is my life's message. I was like starting to get cute here. Three prongs to the message. This was the first one, nothing worthier. Second is that everybody deserves it. I've looked around long and short. I've really thought about it. Really convinced that ऐसा कोई जीवात्मा नहीं है जो इसके लायक ना हो. नालायक नाम का कोई है नहीं वास्तव में, आत्मा रूप से देखे थे. Everybody deserves this experience. And then the third thing I say, which is the biggest message, that everybody can have it. Right? It is not reserved or set aside for the elite, for those particular Brahman कुल के अथवा इतना साल बाद, ऐसा सब के लिए संभव है. And why Gita सिर पर रखे? Because this makes it the most efficient way to get to that. The combination of reading the Gita and doing Dhyan, I'm telling you, brother, trust me on that. The most effective, most efficient way to get to that experience is
एक पैर से गीता, फिर दूसरे पैर से ध्यान, फिर से एक पैर से गीता, फिर बाइकिंग चाहते तो take your pick. It'll take you there, and then you'll feel like I need nothing. I am the Badshah, Shahan ke Shah, not just Utpal Shah. So, Shanta Rajasam. So the part of this is the Rajas. We've talked about Gunam, Sattvic, Rajasic and Tamasic, right? Sattva is purity, goodness. This is the Shanti. The last time we talked about the CD, as if Sansar is on one side, right? And then Bhagwan is on the other side. The point of that is that they're two sides of the same thing. They're not different from each other, first of all, right? I don't know if you were there. Yeah, maybe we'll just do that. I kind of like that example. I came up with it on the impromptu, so I think I'll indulge in it one more time. कि यहाँ पे कृष्णा कहा है तो let's call this the God side of it. और ये, I mean, although this is clean, this is pure. So suppose we, संसार, हम लोग इस side में हैं और भगवान उस side में हैं. So all this effort is to experience God. So the first message is they're not separate. I'm unable to separate and then put aside कि oh ये संसार की जगह है और ये भगवान की जगह है. And they always go together, wherever, no matter what. ऐसा रखे तो भी, ऐसा रखे तो भी, फेंके तो भी, कुछ भी करे तो. So it's inescapable, inseparable. God also cannot separate from us. God is also incapable of throwing us away from His kingdom. Just like you cannot throw yourself away from your kingdom. Because that's Him. Where is He going to go? Right? तो फिर इसका सपोज इसको अगर थोड़े समय के लिए सोचिए इसको होल नहीं है. That's the flaw in my example. But although that flaw is spiritual too, there's a way to spiritualize everything. Suppose this was a flat disc, and then the way for you to climb to get to the other side is to get to the circumference. Whoa. And then as soon as you come over, you're on the other side. You have experience of God, goodness, purity. And so suppose ये जो बाहर की रेम है 1/3, इसे कहे सात्विक, सत्व गुण. Just to give a graphic example, the middle portion is Rajas and the central portion is Tamas. So तीनों की तीनों इनमें कोई सार नहीं, because हमें ऐसा नहीं कि यहाँ पर अटकना है सात्विकता में, अच्छाई में, goodness में. Should have a good life, good life, good life. करते खाली good life नहीं, इसमें नहीं रहना है ना. ऐसा भी नहीं कि बीच में अटकना है, ऐसा भी नहीं कि नीचे में जाना है. ये relatively तो एक दूसरे से अलग अच्छे ठीक है कि ये अच्छा चलो ये क्यों है इसके लिए रुको. We all, everybody here should be getting on this side. No matter where you are here, you want. But the way to do that is if you are in this dense tamas, then start traveling outward, radially, towards Rajas. And if you're in Rajas, start traveling radially towards the circumference Sattvic. Once you are in Shuddha Sattva, then you see that it's just an easy climb. It's just one step. Gunatit avastha, jo last time we were describing, right? भगवान की अवस्था गुणातीत के ये 14वें अध्याय में आएगा. गुणों के पार है, ये गुणों का संसार है, इसके उधर है, पार है जैसे. So Rajas is the one in the middle that is constantly tossed up and down, confused. Because the मुसीबत ये है कि we don't really know, first of all, much about this. We certainly don't know about this. We also don't know that, is this radially outside or is this radially outside? Or is this radially outside? Or maybe this is. So we, as if like a dry leaf, इसकी उपमा आती है, dry leaf in a wind, blowing wherever the wind blows, जिधर ले जाए. हमें अपनी अकल नहीं, अपनी सोच नहीं, पता नहीं, जानकारी नहीं है कि जाना कहाँ मिलेगा वो एज जिसके द्वारा हम उधर जाएंगे. तो ये सारा जीवन 84 लाख कहाँ चल रहा है, इधर ही चल रहा है. इधर से उधर से, कभी सात्विक, कभी राजसिक, कभी तामसिक. राजसिक कहते तामसिक बुरे है, तामसिक कहते तो इसमें ज़्यादा मजा है. द होल टाइम नॉट नोइंग विच डायरेक्शन, दिशा नहीं. दीक्षा कहते ना, गुरु दीक्षा देते, दीक्षा कम्स फ्रॉम दिशा. देयर, लाइक लिटरली गुरु पॉइंट्स यू टू देयर इन दैट. यहाँ पर कोई अटका हो, इसको कहते कि कीप गोइंग इन दैट स्ट्रेट रेडियल डायरेक्शन. डोंट वेवर, डोंट गेट डिस्ट्रैक्ट. इधर उधर न दिखे, संयम करे, इधर उधर न भटके. इसलिए फिर साधना करे, चैंट करे, प्राणायाम करे, ताकि you will stay on that path. Once you reach the edge of Sattvikta, you will start to feel like there is something beyond that. And when you think more, you will see that ये गुण तो ऐसे ही थे.
अभी द प्रॉब्लम यहाँ पे खड्डा है, तो कोई कहे कि तामसिकता से तो हम इधर से क्यों जाए, इधर से चल जाए, है ना। तो रावण ने वैसे ही किया था, है ना। कंस ने तो बहुत ही तामसिक थे, कितना था, तो इतना फिर उनका ऐसा कार्य हो गया कि भगवान को ड्रिल करना पड़ा हो, उधर से इधर आ गए, है ना। राम आ गए, वहाँ तक चले गए, लंका तक गए, ये उधर मथुरा गया और उनके साथ भिड़ गए, इनकी शांति के लिए उसको निकाली इधर से। सो रजस, भैया शांत रजसम की क्या बात है कि रजस इज दैट पार्ट ऑफ द गुण, दीज आर नॉट 3 सेपरेट गुण, बाय द वे। दैट्स अनदर मिसकंसेप्शन की अगेन कंपार्टमेंटल है हमारी जो वृत्ति, बार बार हम जाते हैं इसको पार्टीशन करने में कि ये 3 अलग अलग कुछ है, कोई सात्विक है, कोई राजसिक है, कोई तामसिक, ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पे तो मैंने इमेजिन किया ना, दिस इज ऑल वन, जैसे दिस साइड ऑफ इट, ऑल 3 आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एवरीवन। ऐसे द 14th chapter will tell us that all 3 are at the same time, they manifest differently at different times, at different places. The same person could have been बहुत अच्छे थे पहले, अब बुरे हो गए, बहुत बुरे थे अब अच्छे हो गए। The same person at the same time but at a different place can behave different. इंडिया में जाके अलग करते, या किसी व्यक्ति के साथ, पत्नी के साथ ऐसे तू तड़ा के करते, दूसरे लोगों के साथ बड़ी मीठी मीठी बातें करते। So depending on the circumstances and situations, which gun will manifest more, will power more, ऐसा वर्णन आता है कि at all times one of the 3 is suppressing the other 2. उसकी टर्न में फिर दूसरा आके that suppresses the other. Rajas is the most energetic. सात्विकता का गुण है कि शांति प्रदान। सत्व, normally सात्विक लोग do not try to dominate others. They're okay with it. Not okay as in like dull, lazy, lethargic बन के नहीं, it's like okay, if that makes you happy, do that, that's fine. अपना I have what I need, go eat what you want, go watch the movie that you want, all that. तो सात्विकता इतनी हाई एनर्जी नहीं रहती है, और तामसिकता में lethargy, indolence होता है, laziness होता है ना, कि वो they just don't want to move, जड़ता होती है कि जितना जैसा है वैसे, लाइक उनकी कमरा देखे तो सब लॉन्ड्री इधर उधर पड़ी रहे, जो भी जैसे एनीथिंग वेरी अनऑर्गेनाइज्ड, वेरी डर्टी, वेरी फिल्थी, दिस दैट तामसिक। नाउ ऑल ऑफ अस हैव ऑल 3, रिमेंबर, समटाइम्स आवर रूम्स टू इन आवर ऑफिस डोर आल्सो, बट राजसिक इज द हाईली चार्ज, द मोस्ट एनर्जेटिक, कॉन्स्टेंटली पुशिंग more. उसका the charter, the motto is more, different. Growth. I want more and I want different. I want more, I want different. इससे बोर हो गए, उससे बोर हो गए, अब ये बहुत हो गया, अब दूसरा कुछ। बिजनेस हो, टेक्नोलॉजी हो, डिवाइस हो, शो हो, गाड़ी हो, मकान हो, देश हो, पत्नी हो, पति हो, different, राइट। तो फिर दैट इज राजसिकता। हाँ, पति और पत्नी में डिफरेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन होते नहीं यहाँ पर। 7-year itch, heard of it, right? Every 7 years. Western culture, this is the fact, right? Yeah. Average marriage is 7 years or less. Why? Because बोर हो गए, दोनों बोर हो गए, दोनों को they want something different. Because ये बड़ा राजसिक, this is the rajasic side of the globe. Energized. इसलिए एनर्जी भी इनमें बहुत, कितना काम करते लोग, हम लोग नहीं कर पाते इतना. I cannot perform that much work because there is energy. So the downside of that is it will constantly propel your mind, your thoughts, your words, your actions. फिर ये करे, फिर वो करे. तो यहाँ पर शांत रजसम, best suppressed, ताकि जैसे आग लगी हो और उस पर एकदम पानी डाल दिया, उस पर बर्फ भी डाल दिया, completely dead आग. विचार करें, राजस इज आग. चित्त में उद्विग्न चित्त होता है, कहते हैं, मतलब ऑलवेज एजिटेटेड, ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड, ऑलवेज वांट्स टू विन एंड ऑलवेज इज फ्रस्ट्रेटेड. दोज आर द साइंस ऑफ राजस. दे आल्सो विन, दे एक्चुअली विन. राजसिक पीपल विन. राजा शब्द रजस से आता है. सिल्वर, रज इज द वर्ड फॉर द मेटल सिल्वर इन संस्कृत, जो चमकता है, अट्रैक्ट करता है, जिसकी दाम है, कीमत है जिसकी. और जो उसमें बड़ा उसको महाराजा कहते हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा प्रावेश हो, बड़ा और ग्रोथ चाहिए, सम्राट बनना चाहे उसको. सो
योगी के लिए इस मन की स्थिति का वर्णन किया, उपैति शांत रजसम, रजस शांत हो गया, अब और कुछ दूसरा चाहिए और कुछ ज़्यादा चाहिए, ऐसा चित्त की वृत्ति नहीं, जो है उसका वैल्यूएशन की ओर ज़्यादा है। जितना एम आई इवन एंजॉइंग व्हाट आई हैव, डू आई रियली नीड मोर, डोंट आई हैव इनफ, व्हाट एम आई डूइंग विद एवरीथिंग दैट आई ऑलरेडी हैव, व्हेन वाज द लास्ट टाइम आई वेंट डाउन इन द बेसमेंट एंड यूज्ड दैट, द इंस्ट्रूमेंट और द रैकेट और द बैट और व्हाटएवर इट वाज, और जो भी है ना। तो जब ये वृत्ति होने लग जाए, शांति आने, तब वो रेडियल डायरेक्शन में ट्रैवल शांति की ओर होने लग गया। उधर जाके पता चले कि इसमें कुछ सुख था नहीं, इसमें खाली भटकान थी। उधर गए तो सुख ही सुख है, प्योर जॉय with effortless joy. What is the biggest deal of the experience of God? Effortless, zero effort, because that's your natural state of mind. When you have achieved the natural state of mind, steady state, joyful state, then what do you have to do? जो है जैसे फर्स्ट क्लास आया करता है ना, तो फिर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, वास्तविक में अनुभव हो जाए कि सचमुच में ज़रूरत नहीं है। आई थिंक दिस मे बी गुड स्टॉपिंग पॉइंट। Although I feel like एक श्लोक और हो सकता है, I might want to push for one more, चलेगा? Okay. So, Chintan bhai, do you follow what is Shanta Rajasam? I know it was just too long-winded. Yeah. If you have to summarize like in a few sentences or words, how would you describe that? Completely unagitated. Like, but it's like from inside, not outwardly unagitated. Not unagitated because you got what you wanted. But say you're unagitated, we are agitated to achieve something. When you get it, you become unagitated. That's not how I mean. Unagitated because from inside, from within, there is no desire. In the first place, you're not seeking anything. So then what agitation? So, उसमें और प्रशांत में different है? Prashant is the symptom, is the outward, is how it shows up. Prashanta. But that can only happen when the rajas is shanta, right? So the taming of the rajas. Taming, I like that word. The Yes. taming of that will lead to prashant. Yes, that's right. Yeah. So inward versus the one showing prashant is more outward, like other Yes. people can see. Yes. Versus the one inside. Yeah. लेकिन दोनों एक ही है. लेकिन again, don't go into two separate. There is no separation. The real outward pacific can only be if the inner, the source, root itself is quiet. It's not necessarily about outward. I think it's the result. That's why I'm. Yeah, exactly. Yeah, you're right. Okay, results. It's not. But the result shows up outward. Result, Is, yeah. I think is how I took what you meant, right? Yeah. And you also feel it then. अंदर से भीतर से एक चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जब बेपरवाह हो गए, abandoned, carefree, है ना, again not careless, carefree, चिंता ही नहीं रही तो फिर क्या, तो चिंता तभी मिटी जब चाह ही नहीं रही, तो फिर चिंता की, सारी चिंता उसी से है। ध्यान देकर सोच के देखना, सारी चिंता है चाह से निकली हुई है, because you want something or don't want something, it's related to that something, right? The wanting से चिंता निकली है. All the future चिंता is because of that, कि होगा कि नहीं, कैसे होगा, पूरा होगा या नहीं होगा, टिकेगा कि नहीं, जो मिलेगा वो अच्छा लगेगा कि नहीं, जो सारा उससे लगी. और all the चिंता stemming from the past were because some related to some चाह. So if you cut it out at the root, ना 15वें अध्याय में आएगा इसको मूल से ही नष्ट कर दे. So work on that. So that is the rajas. उसको सारा चाह कहाँ से है? रजस से. More, मैंने कहा ना, more, different. That is चाह, right? That is, अगर वो ही शांत हो गया, I don't want any more. I don't need any more. I don't need anything different. तो फिर उससे कुछ उगेगा ही नहीं, बीज ही नष्ट हो गया तो जैसे, तो फिर then there is no outward manifestation of ashanti. Therefore there is shanti. There is a deep shanti, not just shanti, which is prashanti. So फिर पाप के लिए भी स्थान नहीं, बिकॉज कुछ चाहिए नहीं तो फिर क्या पाप करना है, इसलिए फिर अकलमश हो गया. और फिर द यूनिटी कॉन्शियसनेस का जो कॉन्सेप्ट है, being able to see one and all, Advait, it truly is that.
the other myth or misconception or the misunderstanding about the conflict between Dvait and Advait is that most often represented as Dvait is those लोग अद्वैती कहते हैं कि द्वैत लोग बुद्धू है, आधे ज्ञानी समझते नहीं है. But if I have to pick one, then I might say कि for the sake of God, quote unquote, literally, I would call myself a Dvaiti, and I'll explain why. Like I would, if I had to, I was forced, नाक पकड़ के पानी में दबा दिया, जब तक बोलूँ नहीं एक तब तक निकाल गया, नहीं तो okay, I'm द्वैत को मानता हूँ. But that is for the sake of God, and I'll explain why. द्वैत, अद्वैत वाले कहेंगे कि द्वैत है कि जो अपने को और भगवान को अलग मानते हैं, या कोई दो में मानते हैं, और वास्तविक में एक ही है करके, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ. ऐसा नहीं. The division, Dvait is really the real Dvaitis will tell you that it is a forced division. That there is a difference between मैं ही हूँ या भगवान ही है, right? There's still Advait, there's still oneness, but am I thinking that I alone exist, or am I thinking that God alone exists? Right? Is the wave thinking that wave I am the ocean, or is the ocean thinking, or is the wave thinking that the ocean has become me? It's very subtle. Is the wave thinking it is really the ocean that has become me, or is the wave thinking that it is really me who is the ocean? And so in how you see it would be the distinguish. So द्वैत लोग अद्वैत को तो जानते हैं, खाते हैं, पी चुके होते हैं आराम से, लेकिन प्रेम के लिए अद्वैत नहीं चलता. द्वैत की जरूरत होती है ना. उसमें जो मजा है, उसमें जो माधुर्य है, उसमें जो आनंद है, उसमें जो रस है, उसमें जो उसका जो प्रभाव है प्रेम का, तो वो तो द्वैत में ही पूर्ण रूप से प्रकट हो सकता है. इसलिए फिर देन भक्ति मार्गी will establish that. So last slok for today. युञ्जन् नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते. So this is a recurring theme in this chapter. बार बार ये शब्द आते हैं. युञ्जन शब्द आता है, कलमश अकलमश शब्द आता है, और ब्रह्म संस्पर्श, सुख उत्तम. ये चार, these four concepts come again and again in this chapter. युञ्जन मैंने एक बार डिफाइन किया था, is like the welded joint. The welded joint की महत्ता बड़ापन क्या है? That is stronger than both. The joint is stronger than either. So जो योगी का चित्त ऐसे लग गया भगवान में, as if वो तो भगवान से भी पक्का हो गया, मतलब भगवान भी न उसको हटा सके, न तोड़ सके. अब ऐसे इसके जीवन में कुछ न हो कि जो भगवान से मन विमुख हो सके. ऐसा पक्का चिपक गया योग में. युञ्जन, ये कॉन्सेप्ट बार बार आएगा. दूसरा अकलमश, मतलब पाप रहित, impurity rahit, uncontaminated, pure. Akalmash means uncontaminated, pure, clean, paap rahit. They're describing the facets of this. और तीसरा concept आता है ब्रह्म bhuta, unity consciousness, being able to clearly see the one in all, the one and the same all, not in parts, not in fractions, not broken टुकड़े, but the one continuous stream. क्रिश्चियनिटी में आता है ट्रिनिटी, सुना होगा ना, वो तीन, वो चर्च के आगे तीन लकड़ियाँ लगाते हैं ना, वो कहीं पहाड़ पे लगा देते हैं. तो देयर इज द होली स्पिरिट, देयर इज गॉड, एंड देन देयर वाज जीसस, और हम लोग जैसे कहते हैं. तो द होली स्पिरिट एसेंशियली इज द आत्मा. जैसे हमारे शास्त्र में जो है गॉड इज भगवान, और फिर बाकी जो तीसरा है वो वी ऑल लाइक द वंस दैट आर डिल्यूटेड, द वंस हु दैट वी डोंट नो येट, है ना. So that Holy Spirit, identifying with the same, the one, the constant. So when we don't think that, yes, I am Atma, I am one Atma, but she's also an Atma, and she's a different Atma, and then they are also Atmas. That is not the final truth. That's good progress towards Atma, but the final truth about Atma would be that there is Atma, period. There is one Atma. I am it too. So are you. We're all in it. We are all it. Limited, अभी temporal, time bound, थोड़े समय के लिए ऐसा हो गया कि मैं इतना हूँ, मैं ऐसा ही हूँ. Again, the wave thinking, it's all water, versus, yeah, well, I'm water, but I'm only this much water.
I'm no longer wave, so that's good. But I am water, but I'm this much water. That's not the full truth. And she is this much water, and they are this much water. That's not the full truth. There is water. There's only momentarily waves formed. So, युंजन यहाँ पे आया, अकलमश आया, ब्रह्म संस्पर्श आया, और चौथा सुखम उत्तमम. The greatest quality of joy, the highest grade of positive experience, of pleasure. That is the idea here. That is said that it is not possible to experience that from anything outside of you. It is all inside of you. शक्कर को गुलाब जामुन में डाल दिया, कलाकंद में डाल दिया, और किसी शिकन में डाल दिया, तो वो सब मीठे हो गए. लेकिन they're all less मीठा than शक्कर. Would you agree? है ना? उसमें बहुत भी शक्कर डाल दिया, फिर भी that is still less sweet than वो सारी बहुत शक्कर दी. Why? Because pure शक्कर is pure. It's uncontaminated. It's uncontaminated sweetness. उसको जिसमें डाले वो सब तो मीठे हो गए, लेकिन इतना मीठा नहीं हो जितना शक्कर मीठी थी. ऐसे ही ये सुख मैंने अपने आप को, अपनी चेतना को से जागृत किया. जीवा पर जब कुछ गुलाब जाम रखा तो उसका आनंद आ गया. अपनी चेतना से आँखों द्वारा कुछ देखा, उसके सुख का आनंद हो गया. अपनी चेतना से कानों के द्वारा कुछ सुना, उसका आनंद हो गया. चेतना itself, प्योर जॉय, सच्चिदानंद है, आनंद स्वरूप है. तो you would have to tap into that. You are that. It is inside you. It is with you. It is in you. You are in it. You are with it. You are inside it. In fact, you are it. In fact, it alone is. You are not. है ना? ये जो पूरा अनुभव हो जाए, इसके एकता जब उसके साथ प्रस्तावित हो जाए, that is suggested as the greatest experience of joy, qualitatively. Intense, intense, intense joy. सुखम उत्तमम. सो यहाँ पर हिंदी में है, वह पाप रहित योगी उस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है. युंजन नेवम, हैविंग वेल्डेड, बिकम वन विथ इट, द एक्सपीरियंस, सदा आत्मानम, आत्मा सदा, फॉर एवर, आत्मा से जुड़ गए परमात्मा से. परमात्मा तो आत्मा ही तो है ना, उसके शब्द में भी है ना, तो अलग तो नहीं हुआ. So, युंजन नेवम सदा आत्मानम, योगी कैसा, विगत कल्मश, विगत मतलब छूट गया, सारे पाप छूट गए, सारा अज्ञान छूट गया, सारा मैं मेरा तू तेरे की भावना छूट गई. जहाँ से सब पाप आए, सारे पाप कहाँ से आए, मैं मेरा तू तेरा से आए. जब वही छूट गया तो फिर पाप कैसे रहे, राइट? So this is something we can actively work on. This is something we can deliberately focus on. This is something that can be done. This is not just to be heard or understood. This you can be intentional about it. You can be deliberate about it. You can force yourself to be it. You can help each other to be it. कि it's okay किसी relative ने कुछ कैसे gift दी, कम दी, ज़्यादा दी, किसी को कुछ ज़्यादा मिल गया अपना, whatever you were sharing, to force yourself, your thought deliberately, yato nischarati manaschan, बार बार ला करके. But in the end, aren't we all the same? Aren't we all just one? So why worry about it? It's okay, let go, है ना? उसको आनंद हुआ तो मेरे को ही तो आनंद हुआ. अभी मैं तो सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो why not? ले बेटा, मस्त खा, मजा कर, है ना? तो इसको बार बार जब प्रैक्टिस से करेंगे तो बिल्कुल फिर वो अनुभव होने लगेगा. प्रयास करना पड़ेगा, है ना? जैसे साइकिल सीखते हैं, स्विमिंग सीखते हैं, धीरे धीरे पहले नहीं लगता है, संभव नहीं लगता कि गिरेंगे नहीं, डूबेंगे नहीं, लेकिन अंत में होता है ऐसे, न गिरते हैं न डूबते हैं. तो विश्वास रखे, श्रद्धा रखे कि होगा, इससे होता है. कहा है तो, शास्त्रों ने कहा है, संतों ने कहा है, अनुभवियों ने कहा है, तो होता है. जितनों ने स्विमिंग सीखा पहले, उन्होंने कहा कि नो, यू विल फ्लोट, डोंट वरी, यू विल नॉट डाई. जितनों को बाइक आती है वो कहते कि नो, देयर विल कम अ टाइम इन योर लाइफ व्हेन यू विल बी ऑन योर, ट्रस्ट मी, आई वाज आल्सो लाइक यू व्हेन आई वाज फॉलोइंग. ऐसा अगर कोई कहे तो, अगर इफ यू डू ट्रस्ट, दैट इज श्रद्धा, that is faith. And then if you do say, okay, I'll take the risk, I'll take the chance, I don't believe it, but I trust you, I'll give it a shot. अब बार बार प्रयास करें तो ऐसे ही one time you'll get the momentum and चल पड़ेगी आगे, जरूर होगी, है ना? So that is the encouragement given here. सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुख उष्णते, अति अंत, जो अत्यंत का शब्द, अंत is the end. कितना सुख और सुख और सुख और सुख और सुख और सुख,
फाइनल सुख, अगर कोई कहे कि दिस इज द एंड ऑल बी ऑल, एंड दैट वुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. व्हाट इज सुख फॉर यू may not be different. But let's say everybody agrees on one sukh, that this has got to be the final sukh of this mortal material world. So that's anta. So, और उसके आगे का अति, तो मतलब which means we cannot describe it. यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, उपनिषदों में आता है कि ऐसा सुख, दिस वाज फ्रॉम द उपनिषद नॉट फ्रॉम द गीता, वहाँ पर जाके वाणी वापस नहीं आ सकती, वापस आई तो डिस्क्राइब नहीं कर सकती, मन भी नहीं आ सकता है. यतो वाचो, वाचा मतलब वाणी, निवर्तन्ते जाकर के वापस नहीं आती थी, अप्राप्य मनसा सह, एक तो वाणी से प्राप्त नहीं है, शब्दों से नहीं डिस्क्राइब किया जा सकता, शब्दों से सुना भी नहीं जा सकता उसका वर्णन, मन से भी नहीं समझा जा सकता. और जिसका मन वहाँ पहुँच गया है, जिसकी वाणी उस बात को समझ, वो आके वापस वर्णन नहीं कर सकती. तो दैट इज द स्टेट ऑफ आत्यंतिक सुख. हमारे जीवन का प्रयोजन शास्त्रों ने कहा है कि आत्यंतिक दुख निवृत्ति और आत्यंतिक सुख प्राप्ति. So, इतनी दुख की निवृत्ति हो जाए, निवृत्ति मतलब रिटायर, गॉन, आउट ऑफ कमीशन, निवृत्त रिटायर हो जाते हैं, आउट ऑफ कमीशन हो जाते हैं. तो आत्यंतिक दुख निवृत्ति, कंप्लीट दुख से नाश हो जाए, दुख का अनुभव कहीं ना हो, दुख को भूल ही गए दुख के साथ. दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ. देन इट्स रिप्लेस्ड विद आत्यंतिक सुख प्राप्ति, a constant experience of joy. That's what we're born for. Don't want to settle for some trinkets here and there. थोड़े चमकने वाले टुकड़े किसी ने दे दिए तो उसमें खुश हो गया. अब इतने के लिए फिर तो वो सीढ़ी पे घूमना ही, पता नहीं किस दिशा में जाना है, फिर तो घूमना ही पड़ेगा. कोई अगर कृपा करके लात मार के हटा दे उधर से तो पहुंच जाएंगे तो पहुंच जाएंगे, फिर तो जब उसकी कृपा होगी जिसकी होगी. लेकिन प्रयास है ना, तो हमें करना होगा समझने के द्वारा. So I think we'll stop here. Next time we'll start at 29. I'll encourage you to read ahead if you want, think ahead if you want. As shamelessly, relentless, nirlajja, जैसे हो, I will just read that at least shlok. I'm not ready to let go yet. Sarvabhutastha atmanam sarvabhutani cha atmani ikshate yoga yuktatma sarvatra samadarshana. But I did close it, so you can rest easy. And the reason I read that shlok is because it's a very famously accepted shlok by Emerson and Thoreau. And it's one of the greatest thinkers that the West, and including America, has produced, right? Henry David Thoreau और Lord Emerson. इस श्लोक को लेकर के पागल हो जाते थे. एक गुरु था, एक शिष्य था. थोरो का शिष्य एमर्सन, अमेरिकन. गीता का के वो रेगुलर थे, गीता के दोनों completely like followers of Gita. And they're like superior thinkers. If you read Thoreau's essays or Emerson's essays and Thoreau's thoughts, mind-blowing stuff, phenomenal. And they would attribute their thought prowess to Gita. And this particular shlok, अभी जो मैंने पढ़ा, number 29, we will pick up next time. कि जो, well, I will not define it because then it will start again. Well, it was number 29, you can go. And then, but ऐसा वर्णन मैंने पढ़ा है कि they would literally get fired up and just put the book on their head and just dance with each other like crazy. Oh my God, what is this? What is this experience that we are feeling? गुरु शिष्य पागल हो जाते, बिन हो जाते एकदम. तो I would encourage you to do the same, not necessarily dance, but bin ho jaye usme. Maybe dance, maybe husband wife dance. Why not? All in love, all in joy. So let's थोड़ी देर ध्यान करते हैं फिर से, और फिर प्रसाद वितरण करेंगे अपना. शांत बैठे. सर्वभूतस्थ आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि. ऐसा जो देख पाता है,
जो अभी हमने श्लोक सुना 29वां छठे अध्याय में, सर्वभूत, anyone and anything in existence, सबको आत्मा में देख पाए, स्वयं में, खुद में देख पाए, never disconnected, always one, contiguous, homogeneous, uniform. सर्वभूतानि च आत्मनि, all in me and I in all. Just like the pot in space and space in the pot. मठाकाश में घटाकाश, जैसे मटका समुद्र में हो, गागर के भीतर भी पानी, बाहर भी पानी, पानी में गागर और गागर में पानी। सर्वभूतस्थ आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि, ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। योग से युक्त आत्मा ऐसे देख पाता है और फिर सब और समदर्शी हो जाता है। Witnessing the sameness in all, across all. It's all the same, undistinguished, non-discrete, the one and only. तो अपने जीवन में प्रयास करे, बड़ी सुंदर सिस्टम भगवान की परिवार दे दिया। I am the center of the circle, around me is a circle and then another circle and then another circle, a number of concentric circles, with the aid of which I, the center, can expand my vision, can expand my unity consciousness. तो एक मैं और पत्नी और एक बेटा और एक बेटी, तो मैं खाली मैं न रह जाऊँ, अपनी पत्नी के साथ एकत्व देख पाऊँ। नो डिफरेंस, नो जेलसी, नो स्पर्धा, नो कंपटीशन, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। You and I, aren't we the same in one? फिर the firstborn and the second one, aren't they also united with us? Aren't we the same? And then my parents and your parents, and my brother and your sister, and then the other relatives, and then all my friends and your friends and our kids' friends and their families, and then my neighbors, and then everyone in the hood, and then those I work with, my colleagues, those in my city, in my country, in other countries, everyone on this planet. Not just humans, then all the creatures. Vasudhaiva Kutumbakam, पंचदशी नाम के ग्रंथ में आया, उदार चरितानार्थु। इसके रचयिता कहते हैं, महाजनस्तु येन गतस्य पंथाः उदार चरितानार्थु वसुधैव कुटुंबकम. The famous phrase we have all heard, Vasudhaiva Kutumbakam, comes from Panchadashi. It is 1/4 of a shlok that says Udara Charita. The generous-minded, the high-minded, they live like the entire Vasudha, Prithvi. The one who is upheld by Vasudeva, Vasu, Dharan Kari, Vasudha, Eva, all of it, Kutumbakam, it's all my family, it's all that of mine, everything belongs to me. Therefore, I am responsible for everyone. I'm accountable. I must work for the benefit of all. I must think well, not ill of all.
महाजनस्तु येन गतस्य पंतः, महाजन लोग इस पंथ से आगे चल पड़े हैं। उनके उदार चरित्र में ये दिखाई देता है, वसुधैव कुटुंबकम ईक्षते योग युक्तात्मा। इस श्लोक में कहा सर्वत्र समदर्शना, द यूनिफाइड विजन ऑल अराउंड। इतने ऊंचे संस्कार, इतने हाई मॉरल्स, such are the teachings where I was born. Such are my scriptures. Such is my Hindu religion, the set of rules I follow, which ultimately takes me to my original nature, my Sanatana Dharma. With that grand vision, Divya Drishti, I will accept all, I will love all, I will forgive all, I will tolerate all, I will include all, I will give all. And in that experience, I will know that I will be all. The May 2019 bring us all the grand vision of Vasudhaiva Kutumbakam. May we erase all the artificial boundaries around our psyche. May we establish ourselves in our real nature, in our Atma. May we securely lodge that Atma in the love of God. In loving God, I will love all. And in loving all, I shall love my God. Love Shri Krishna. Jai Shri Krishna. Merry Christmas, everyone. Happy holidays.